Dear students, welcome to ICE Academy. I have a notification for you. ICE Academy ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लासेस संचालित कर रही है, जिसमें पीसीएस की क्लासेस, वनडे क्लासेस, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस भी संचालित हो रही है और टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस भी आरंभ हो चुकी हैं। टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस पूर्णिमा उपाध्याय ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा रही हैं। शी इज द बेस्ट एजुकेटर ऑफ Allahabad University. Presently, she is working in this channel, ICE Academy. Today, I am going to start a famous tragic play of William Shakespeare known as Macbeth. Macbeth is one of the very famous play of William Shakespeare. William Shakespeare wrote many plays. This is one of the best plays of William Shakespeare. William Shakespeare is known as a milestone in English literature. None can surpass him for creating such types of plays. Dear students, after long gapping, I am going to teach you this play, Macbeth. Actually, this play is very famous play among all the plays of William Shakespeare. This play, Macbeth, is taught by the teachers in different types of universities. Likewise, whatever it may be, Allahabad University, BHU, JNU, Purvanchal University, and some other universities, it is the syllabus of UG classes or graduation classes. First of all, I am going to describe the characters of this play one by one. Listen to me very carefully. This play, Macbeth, has been created by William Shakespeare, the great dramatist of his time. William Shakespeare wrote nearly 37 plays, of his time, and he wrote 154 sonnets. So here, when we are going to attend the tragic play of William Shakespeare, Macbeth is also regarded as a famous tragic play of William Shakespeare. So here you can see the first and important character of this play, Macbeth is Macbeth. Macbeth is a tragic hero of this play. All the activity moves around Macbeth because he is the leading character, he is the protagonist of this play, and he is highly ambitious of this play. And the second character is Lady Macbeth. Lady Macbeth is the second character. She is the wife of Macbeth. Now second character is Banquo. Banquo is also very famous character. How can you say that Banquo is very famous character? We can say that he is very famous because Macbeth is the general of the army of King Duncan, and Banquo is the junior of Macbeth. Banquo जो है junior है. Once a war broke out between Norway and Scotland.
There Macbeth went. There Macbeth went with Banquo for the fighting of the battle. After going there, Macbeth and Donald. Here is another character known as Donald. Macbeth and Donald, they were face to face. In this war, when Macbeth was going to fight, during this period, he fought bravely there. As a result, he got victory over him. When Macbeth was returning from there, जब मैकबेथ वहाँ से वापस लौट रहा होता है, when he reached in one of the solitary place or unfertile place or west plot of land, there he met with three witches, as you can see here on the board, which number 1, which number 2 and which number 3. These witches are important one for this play. After defeating his enemy, when Macbeth reached to a solitary place, then there he met three witches. The first witch, she forecast about Macbeth that Thane of Cawdor, you are most welcome. The second witch said that Lord of Inverness, you are most welcome. And the third witch also forecast that the future king of Scotland, you are most welcome. These three forecastings had been done by the three witches one by one. ये तीन चिड़ैलों ने तीन प्रकार की भविष्यवाणी की. बट बैंको वॉज आल्सो देयर. बैंको भी वहाँ था और बैंको asked to the witches, you have no forecasting about myself. Then those witches had done the forecasting in the favor of Banquo. Banquo, you cannot be the king of Scotland, but your sons would be the king of Scotland. In future, you will be the father of the king of Scotland. This is the forecasting of three witches against Banquo in the favor of Banquo. As soon as Banquo and Macbeth were returning, then King Duncan, who was the king of Scotland, he became very glad. As a result, he sent one of the messengers, and the messengers went closer to Macbeth and said that you are the Thane of Cawdor. As soon as Macbeth heard this, then he thought that the first forecasting of the witches came true. That is why he thought about it that perhaps the witches are right and she will giving the true forecasting. उसे लगा कि witches सही हैं, इनकी भविष्यवाणियाँ सही हैं. जैसे ही वह आता है और किंग डंकन से मिलता है, किंग डंकन से मिलने के बाद वह अपने महल को जाता है. The court of Macbeth was situated in Inverness, where Lady Macbeth used to live. जहाँ लेडी मैकबेथ रहा करती थी. लेडी मैकबेथ के पास जैसे ही मैकबेथ जाने के बाद मैकबेथ टोल्ड हर दैट, मैकबेथ ने उन्हें बताया कि I met with three witches and these three witches had done the forecasting that one day I will be the Thane of Cawdor. Presently I am the Thane of Cawdor. And the second witch said that Lord of Inverness, you are most welcome. And third said that future king of Scotland, you are most welcome. When Macbeth said this to his wife, Lady Macbeth, she became very glad because she was seeing the dream that she would be the queen of Scotland. Because she was tempting woman. वह एक लालची महिला थी, उसे लगा कि अब वो स्कॉटलैंड की रानी बनने ही वाली है. In the meantime,
Macbeth went to Inverness, his own castle, so that he could take the rest there. But the king of Scotland, who was very glad to see this victory, that is why he also went to Inverness to meet Macbeth. As soon as King Duncan went to Inverness to meet Macbeth, at that time, Macbeth had done the warm welcome of the king of Scotland, I mean to say King Duncan. किंग डंकन जैसे इन्वर्नेस उसके किले पर पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद राजा डंकन का भव्य स्वागत होता है. विथ डंकन his son Malcolm, his both the son Malcolm and the younger one both were there at that time. But when the king had taken the food and he went in the chamber for sleeping, during this period the two gatekeepers, they were at the gate for guarding the King Duncan. And during this period, King Duncan also declared Macbeth the Lord of Inverness. These two forecasting would come true for Macbeth. Now the third was going to become true, and Lady Macbeth thought that now my husband was going to be the King of Scotland and I am going to be the Queen of Scotland. यानी मैकबेथ ने जब ये सुना कि दो भविष्यवाणियाँ दो चुड़ैल की सही हो चुकी हैं, तो उसे लगा कि तीसरी भी इट विल श्योरली कम ट्रू, यह भी सत्य होगी. दैट इज वाई लेडी मैकबेथ मेड अ प्लान फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन. लेडी मैकबेथ में राजा किंग डंकन के मर्डर की योजना बनाती है. एंड सी फोर्स्ड हर हस्बैंड टू किल द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सो दैट Macbeth became the king of Scotland and she would become the queen of Scotland. When Macbeth was with his wife, she forced him to go in the chamber of the king Duncan and kill him for giving a dagger. Dagger, that is कटार. एक कटार दे करके लेडी मैकबेथ को भेजती कि जाओ राजा डंकन का कत्ल करो. When Macbeth took the dagger and he went inside the chamber, then he saw that the two gatekeepers were standing. They were guarding King Duncan. But after seeing the king, Macbeth felt pity on him because the king of Scotland, who was Duncan, had a great love with Macbeth. Duncan Macbeth से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और Macbeth किंग डंकन से. और मैकबेथ को देख करके मैकबेथ उसे देखा जब राजा डंकन को वह सो रहा है, ही इज इनोसेंट, वह बिल्कुल निर्दोष है, तो मैकबेथ को लगा कि ऐसे व्यक्ति को सोते समय मारना एक जघन्य अपराध होगा. उसकी दया कई गुनी हो करके उसके पास आती है. एंड ही वाज अनसक्सेस टू किल किंग डंकन एंड ही रिटर्न. इसके बाद वो लौट जाता है. जब किंग डंकन लौट जाता है तो लेडी मैकबेथ से धिक्कारती है, कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम जैसा कायर इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता. इफ यू हैव गॉन टू किल किंग डंकन यू शुड किल हिम. व्हाई डिड यू रिटर्न फ्रॉम देयर विदाउट किलिंग और फुलफिल योर पर्पज. आफ्टर हियरिंग दिस मैकबेथ सेड दैट आई कैन नॉट डू दिस. मैं ऐसा नहीं कर सकता. देन शी सेड व्हाई. उसने कहा क्यों. उसने कहा कि वह उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मुझे उन्हें देखकर दया आ गई. देन लेडी मैकबेथ presented one of the example and she said that if I have decided to kill my own child, अगर मैं अपने बच्चे को मारने की ठान लेती, when my child or baby or kids feeding the milk, जब मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, मेरा अपना बच्चा दूध पी रहा हो, and he is laughing for seeing my face, then I have no pity on him and I would stuck the head of my baby to the stone and kill him. लेडी मैकबेथ कहती है कि सुनो, अगर मैं अपने स्वयं के बच्चे को मारने की ठान लूँ, मेरा बच्चा अगर मेरा स्तनपान कर रहा हो और मुझे देखकर हंस रहा हो, अगर हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है, इफ़ आई हैव डिसाइडेड टू किल हिम,
then I will stuck the head of the baby to the stone and kill to death. Listen, dear audience. मेरे प्रिय श्रोताओं, सुनिए ध्यान से. What a great misfortune of a lady like Lady Macbeth. किसी महिला के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो अपने पैदा हुए बच्चे को इस तरह से मारने का संकल्प ले और मार दे, तो उसे स्त्री होने का कोई तात्पर्य नहीं है. हमने सुना है कि स्त्रियां दयावती होती हैं, उनमें दया होती है, और दया, द पिटी इज ग्रेटर दैन वीमेन, पिटी इज ग्रेटर दैन वीमेन इन मैन. जहाँ तक पुरुषों की बात है, पुरुषों से अपेक्षा स्त्रियों में दया ज़्यादा होती है, हमने ये सुना है. बट द एग्जाम्पल ऑफ लेडी मैकबेथ प्रूव्ड दिस दैट द लेडीज आर नॉट full of pity. After hearing this example, Macbeth went inside the chamber of King Duncan. Firstly, he killed the guards of King Duncan because they were in intoxicating mood. They drank too much. वे बहुत अधिक शराब पिए थे और वे नशे में थे, राजा के गार्ड, और उन्हें पता भी नहीं था कि they were wrong or right, they were conscious or unconscious. मैकबेथ ने पहले उन्हें कटार से मारा. आफ्टर दैट ही वेंट इनसाइड द चैम्बर एंड किल्ड द किंग डंकन, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के उकसाने पर राजा डंकन की हत्या कर डाली. राजा डंकन की हत्या करने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग मैकबेथ डिक्लेयर्ड दैट किंग डंकन वाज किल्ड बाय हिज ओन सन्स. मैकबेथ ने राजा की हत्या कर दी और उनकी हत्या के बाद उसने पूरे राज्य में यह बात डिक्लेयर कर दी कि राजा डंकन की हत्या उसके पुत्रों ने की है, मैल्कम ने की है. और सारी की सारी प्रजा मैल्कम तथा उसके छोटे भाई को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ी कि उन्हें मार दिया जाए. मैल्कम वाज इनोसेंट, ही डिड नॉट किल हिज फादर, दैट इज व्हाई ही रन अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड टू इंग्लैंड टू सेव हिज लाइफ. अपने जीवन को बचाने के लिए मैल्कम को वहाँ से भागना पड़ा, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग गया, तब जाकर उसकी जान बची. दिस इज पॉलिटिक्स. ये पॉलिटिक्स है. सत्ता सुख सभी चाहते हैं. एक बार जो राजा बन जाता है वह हमेशा राजा बना रहना चाहता है. लेकिन राजा के पुत्रों ने अपने पिता को मारने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक कि सोचा भी नहीं. लेकिन यही है राज के नियम. राज के नियम यही कहते हैं कि सक्सेस बट एनी कास्ट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. तो हियर मैल्कम रन अवे फ्रॉम देयर. नाउ मैकबेथ बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. द थर्ड फॉर कास्टिंग ऑफ द थर्ड लास्ट विच इज इट विल आल्सो कम ट्रू. उसकी भी भविष्यवाणी सत्य हो गई. मीन्स मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन गया and Lady Macbeth became the queen of Scotland. Now for this purpose, for this happiness, a feast was arranged. इस उद्देश्य से कि राजा मैकबेथ हो गया, प्रजा बड़ी खुश थी और एक शाही दावत का आयोजन किया गया. जब ये शाही दावत चल रहा होता है, an idea stuck in Macbeth's mind. मैकबेथ के मस्तिष्क में एक विचार आया कि चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की थी कि बैंको जो है, उप सेनापति जो है, वह राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन वह राजा का पिता हो सकता है. मीन्स बैंको का पुत्र फ्लियंस राजा बन सकता है भविष्य में. दैट इज व्हाई मैकबेथ मेड अ प्लान टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लियंस. मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने एक योजना बनाई कि न रहेगा बांस, नो बम्बू नो फ्लूट, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी. इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि बैंको और उसके पुत्र फ्लियंस को मार दिया. उसी दिन मैकबेथ ने शाही दावत के दिन बैंको और उसके पुत्र से कहा कि समय से आ जाना, शाही दावत हमारा शाम को शुरू होगा. इधर जैसे ही बैंको और फ्लियंस चले जाते हैं, मैकबेथ ने अपने कुछ किलर्स को जंगल में स्थापित किया कि जैसे ही बैंको आए, फ्लियंस आए, बाप बेटे दोनों की हत्या कर, जिससे मैं निष्कंटक राज करूं, जिससे मैं
स्कॉटलैंड का ऐसा राजा हो जाऊं जिससे कभी किसी को कोई किसी भी व्यक्ति का मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। ऐसा ही हुआ, प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ। जैसे ही दावत आरंभ होने जाती है और मैकबेथ तथा फ्लिएंस जंगल से होकर आ रहे होते हैं, इन द मीन टाइम द किलर्स ऑफ मैकबेथ दे वर हाइडिंग इन द फॉरेस्ट और जंगल। एज सुन एज मैकबेथ केम एज सुन एज बैंको केम देयर द किलर किल्ड बैंको। किलर्स ने बैंको को मार डाला। व्हेन फ्लिएंस saw this he ran away from there। anyhow फ्लिएंस escaped himself। अपने पिता की हत्या होते हुए देखकर फ्लिएंस वहाँ से भाग जाता है, किसी प्रकार वो अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद फ्लिएंस भी भाग गया, मैल्कम भी भाग गया। नाउ मैकबेथ हैड नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर कैरेक्टर which is known as Macduff। Dear students and audience, you have some difference between Macbeth and Macduff. Both the names are similar, so you should not become disturbed for following Macbeth and Macduff. Both are not same, they are not brothers. Here Macduff is another character, and Macduff was powerful one. When these things happened, then Macduff also went to England to help Malcolm। Macduff जो था, he was a true patriot। राजा की हत्या के बाद मैल्कम जब इंग्लैंड भाग के जाता है तो मैकडफ उसकी मदद करना चाहता है। वह चाहता है कि वह मैकबेथ को बेनकाब करे, उसे गद्दी से हटाए और असली वारिस को, जो राजा डंकन का पुत्र है, मैल्कम को राजगद्दी दी जाए। इस तरह की बातें होती हैं। तो होता क्या है कि मैकडफ भी इंग्लैंड होता है, मैकडफ की पत्नी और उसका बेटा अपने किले में होते हैं। मैकबेथ जाता है, मैकडफ की पत्नी मैकडफ के बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। When this news went to England, when Macduff heard, he became very nervous and set beyond the proper limit। क्योंकि एक व्यक्ति का परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है। जब मैकडफ को पता चला कि मैकबेथ ने मेरी पत्नी और बच्चे को भी का कत्ल कर दिया, अब उसके रास्ते में कोई भी नहीं आने वाला। ये बात बड़ी ही गड़बड़ थी, बड़ा ही विभत्स थी, जो इस नाटक में मैकबेथ के द्वारा की जाती। इधर इंग्लैंड के राजा ने मैल्कम मैकडफ की मदद की। उसने एक सेना की टुकड़ी भेजी कि जाओ मैकबेथ को परास्त करो। मैकबेथ को इस बात की बड़ी चिंता थी कि मैं सफल होऊंगा अपने अभियान में या नहीं। वंस अगेन मैकबेथ वेंट टू मीट विद दीज थ्री विचेस। एक बार फिर मैकबेथ जाता है उन तीन चुड़ैलों से मिलने। जब वो चुड़ैलों के पास जाता है तो कहता है कि कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा। थ्री विचेस दे केम वन बाय वन एंड दे वंस अगेन forecast about Macbeth that Macbeth, no one can kill you at any cost। मैकबेथ तुम अमर हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम तभी मरोगे when the forest of Birnam, Birnam is the name of a forest in this play। My dear student, listen to me very carefully। Birnam is the name of the forest। वहाँ पर एक चुड़ैल ने भविष्यवाणी की कि when the forest of Birnam, जब फॉरेस्ट ऑफ बिरनम का जंगल जो है चल करके मैकबेथ के किले के पास पहुंचेगा, यानी मैकबेथ के पास पहुंचेगा, तभी मैकबेथ मारा जाएगा। Is that possible? A forest can move one place to another। According to Macbeth, this is not possible। A forest can move one place to another। That is why Macbeth was sure that none can kill him। मैकबेथ को लगा कि बिरनम का जंगल कभी चला है, जंगल या नदी पहाड़ कभी चलता है, इसलिए आई एम श्योर नन कैन किल मी। मैकबेथ को लगा कि अब मैं अमर हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। द सेकेंड forecasting was that against Macbeth। Listen Macbeth, none can kill you, only the man can kill you who had taken birth from the womb of his mother।
अब नॉर्मल में एक चुड़ैल ने कहा कि देखो मैकबेथ, तुम्हें वही पुरुष मार सकता है जो अपने माँ के गर्भ से एबनॉर्मल वे में पैदा हुआ, जिसकी सामान्य ढंग से जन्म ना हुआ हो, समय से पहले आया हो सीजर के द्वारा। वही व्यक्ति तुम्हें मार सकता है, अन्यथा तुम मारे नहीं जाओ। नाउ लिसन, आगे क्या होता है। मैकबेथ को अब श्योर हो गया कि अब वो मारा नहीं जाएगा। इसी बीच इंग्लैंड से मैल्कम मैकडफ की सेना आ जाती है बिरनम के जंगल में, और उसमें एक बूढ़ा सैनिक था जिसने मैल्कम और मैकडफ को यह एक रहस्य बताया कि सेना जो मैकबेथ की वो बहुत शक्तिशाली है, हम उसे जीत नहीं सकते। मैकबेथ को लगना चाहिए कि हमारी सेना उससे बड़ी, ताकि उसका आधा मनोबल गिर जाए। उस बूढ़े सैनिक ने कहा कि सारे सैनिक एक एक तोड़ लो डाल जंगल की, और डाल को एक साथ पकड़ करके सब लोग मैकबेथ के किले की ओर बढ़ो। ऐसा ही हुआ, बुद्धिमत्ता से युद्ध जीता गया। जैसे ही मैल्कम और मैकडफ अपनी सेना के साथ मैकबेथ के किले की ओर जा रहे होते हैं, पेड़ की डाली पकड़े हुए, तो मैकबेथ के जो मैसेंजर्स थे उन्होंने मैकबेथ को सूचना दी, महाराज महाराज गजब हो गया। मैकबेथ सेड दैट व्हाट, उसने कहा कि बिरनम का जंगल तो चलकर आ रहा है। मैकबेथ परेशान हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हुआ कि बिरनम का जंगल चलने लगा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद लेडी मैकबेथ जो थी वो बहुत परेशान हो जाती है। जो हत्या उसने कराई थी राजा डंकन की, उसे रात में स्वप्न आते थे। स्लीप वॉकिंग सीन में वो आ गई। दिस सीन इज वेरी फेमस इन मैकबेथ। वह रात में नींद में चलती थी। रात में नींद में चलने की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्लीप वॉकिंग सीन। निद्रा में वह चलती है, बड़बड़ाती है और कहती है कि मेरे हाथों से, मेरे पति के हाथों से जो खून हुआ है, ये खून के धब्बे धुले नहीं जा सकते। A famous line used here in this play Macbeth by William Shakespeare, all the perfumes of Arabia cannot sweeten my hand. अरब के सारे इत्र अगर एक साथ मिल जाएं तो भी ये मेरे हाथों को नहीं धुल सकते। मीन्स माई हैंड इज ब्लड स्टैन्ड। इन हाथों ने खून किया है, मेरे हाथ रक्त रंजित हैं। इन हाथों से जो खून हुआ है, ये धब्बे खून की चींटे कभी मिट नहीं सकते। लेडी मैकबेथ अनकॉन्शियस हो जाती, विक्षिप्त हो जाती, और युद्ध शुरू होने से पहले ही लेडी मैकबेथ वाज डाइड इन मिस्टीरियस वे। लेडी मैकबेथ मर जाती है। जब लेडी मैकबेथ मर जाती है, मैकबेथ जब इस बात को सुनता है तो उसे बड़ा धक्का लगता है। अगर पत्नी वास्तव में पति की शुभचिंतक है तो उसके जाते ही पति आधा हो जाता है, मतलब उसकी एक मौत हो ही जाती है। तो पत्नी के जाते ही मैकबेथ जो सोचता है, अब लगता है कि मैं हार जाऊँ। उसी बीच मैकडफ आ जाता है मैकबेथ के किले में। मैकबेथ एंड मैकडफ वर फेस टू फेस। मैकबेथ और मैकडफ फेस टू फेस होते हैं। जब वो लड़ रहे होते हैं, मैकबेथ कहता है, मैकडफ यू कैन नॉट किल मी, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं अमर हूँ। ही सेड व्हाई, हाउ, उसने कहा जानते हो, नन कैन किल मी, ओनली द मैन कैन किल मी हु हैड नॉट टेकन बर्थ टू द वूम्ब ऑफ हिज मदर एबनॉर्मल वे बट नॉट नॉर्मल। तो मैकडफ से मैकबेथ कहता है कि जो समय से पहले अपनी माँ के गर्भ से सीजर के द्वारा निकाला गया हो, जिसने नॉर्मल पैदाइश नहीं जिसकी हुई हो, ठीक है, वही मुझे मार सकता है। नाउ यू कैन नॉट किल मी। देन मैकडफ सेड दैट लिसन मैकबेथ, आई एम द मैन हु हैड टेकन बर्थ बिफोर द टाइम एज एबनॉर्मल। मैकडफ कहता है, सुनो मैकबेथ, मैं वही शख्स हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं अपनी माँ के गर्भ से समय से पहले आया, सीजर के द्वारा आया हूँ, मेरा बर्थ नॉर्मल नहीं है। आफ्टर हियरिंग दिस मैकबेथ लॉस्ट हिज करेज। यह सुनकर के मैकबेथ अपना साहस खो देता है,
उसे लगता है कि बिरनम का जंगल चल के आ गया और मैकडफ अपनी माँ के गर्भ से ऐसे नहीं पैदा हुआ जैसे सभी लोग पैदा होते हैं। इन दिस वे मैकबेथ एंड मैकडफ वर फेस टू फेस अ ड्वेल फाइट दैट इज द्वंद्व युद्ध। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। एज ए रिजल्ट मैकडफ किल्ड मैकबेथ, ही कट द हेड ऑफ मैकबेथ। मैकडफ ने मैकबेथ का सिर कलम कर दिया। आफ्टर दैट मैलकम was occupied the throne of Scotland। इस प्रकार मैलकम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया मैकडफ की मृत्यु के बाद। तो दिस प्ले comes to an end, but here is a question. This question can be asked again and again in TGT and PGT. There you can see on the screen first which, second which and third which. The question is this: who is the fourth which? Those students, they are attending me, they will attend TGT or PGT in future to crack the examination. They must know this. The fourth which is Lady Macbeth here. अगर हम बात करते हैं इस प्ले में 3 चुड़ैल की बात की गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की, तो who is the fourth witch? Dear students, the fourth witch is Lady Macbeth. जो चौथी विच है वो लेडी मैकबेथ है। शी द वाइफ ऑफ मैकबेथ, वह मैकबेथ की पत्नी है। उसे फोर्थ विच क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपने बच्चे को भी, दूध पीते हुए बच्चे को भी मार सकती है। तो ऐसा जघन्य अपराध, इस तरह के कार्यों को एक चुड़ैल ही कर सकती है। कोई नॉर्मल स्त्री ऐसे कार्य को अंजाम नहीं दे सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर Macbeth did all these things due to his over ambitions. So this question can be also asked in TGT or PGT examination. So please attend this video, this lecture very carefully. Perhaps this video, this lecture will be helpful to you all. Okay, that's all. Bye bye.